Okay, good morning everyone. Am I audible to all? Good morning, sir. Okay, good morning, good morning. Okay, we'll just wait for 2 minutes. Rest of them are also joining. Okay, so we'll start. Rest of them will join. Before starting, I just want to ask everyone that have you submitted your physical education projects? Everyone. कोई ऐसा है जिसने सबमिट नहीं किया है अभी तक? आई थिंक द डेट वाज 15th. मतलब कल ही लास्ट दिन था उसका. I hope you have followed all of the rules and regulations which were mentioned in those PDFs. ठीक है, वो सारे PDF के ऊपर जो भी रूल्स वगैरह लिखे हुए थे, you have followed all of those rules and you have prepared your projects. You have submitted in that given way. ठीक है, उन्होंने जो आपको तरीका दिया था सबमिट करने के लिए, कैसे कैसे आपको प्रोसेस करना है, वैसे टाइप में आपको सबमिट करना था. क्या क्या ऑप्शंस उसके ऊपर मेंशन करने थे, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर डालना था, वो पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यू हैव टू ऐड ऑन दोज प्रोजेक्ट्स. ठीक है, उसमें
उसमें से कोई भी इंफॉर्मेशन अगर मिसिंग रहेगा एंड इफ दे आर नॉट एबल टू फाइंड योर नेम और योर रोल नंबर और योर क्लास, ठीक है, देन दैट विल कॉज इन रिडक्शन ऑफ मार्क्स. ठीक है, सो क्लियर विद दैट. ओके, so we'll start. Okay, so I have reinstalled this Autodesk 3ds Max software. और उसके स्टार्ट के वेलकम स्क्रीन के ऊपर ऐसे दिखेगा आपको. देखो, जिसने इसने इंस्टॉल नहीं किया रहेगा या फिर जिसने इसे इंस्टॉल किया रहेगा, आपको ये सारे ऑप्शन दिखे रहेंगे उसमें. स्टार्ट में जब भी आप लोग ऑन करते हो सॉफ्टवेयर, आपको ऐसे एक वेलकम स्क्रीन दिखता है इसके ऊपर. सी, these types of animations we can create in 3ds Max. This is a morphing animation. ठीक है, creating different objects and you have to morph those objects in different forms. These are some of the tools. ठीक है, control the camera and viewport display, sign in here, select the workspace, command panel, time and navigation, scene explorer. This is a menu bar. ये तो common ही रहता है सब में. ठीक है, this is a menu bar. Then there is properties window, timeline, time and navigation, timeline, keyframes वगैरह वो सब रहता है. ठीक है, shortcuts. Some of the mouse shortcuts you will get in the beginning. Help, sample files, you are invited, 1-minute startup movies, tutorials and learning articles. ठीक है, so this is included in 2018 3ds Max. इसको भी हम लोग क्लोज करेंगे. Language is English. Close it. This is the interface which we have studied. ठीक है, अभी इसके अंदर से ये वाला मैं ऑफ कर देता हूँ. This is the normal interface. In this we have studied different type of modifiers. ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पूछा था मुझे कि कैन वी इंपोर्ट डिफरेंट मॉडल्स क्रिएटेड इन माया या फिर कोई भी ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर के अंदर जो भी आप लोग बनाते हो, कैन वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट दोस मॉडल्स इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स ऑफ ऑटोडेस्क. ठीक है, मतलब आप लोग शेयरिंग कर सकते हो क्या वो मॉडल्स का दूसरे सॉफ्टवेयर्स के अंदर, मतलब दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर लेके आप लोग उसके ऊपर काम कर सकते हो क्या. ठीक है, सो टुडे आई विल टीच यू द सेम टॉपिक व्हिच इज ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फाइल मैनेजमेंट. ठीक है, I think I have already shown you, but still I will repeat. I don't remember if I have shown you or not. Just I will repeat it in detail. Okay. For example, now I have 3ds Max. On करता हूँ मैं 3ds Max. ठीक है. इसके अंदर I have created some of the model. Go to File, Open. Okay, I will open this old model which I have created. ठीक है, ऐसे कुछ एक मॉडल क्रिएट किया है मैंने which have a maximum mesh. It is not completed fully, but it is just created for the sake of modeling. Just take some another model. Okay, I will take this exterior only. Okay, this was one of the exterior model which I have created for one of the projects. ठीक है, अब इसको क्या करना है, if you want to
एक्सपोर्ट दिस फाइल एंड इंपोर्ट इट इन अनदर सॉफ्टवेयर। मतलब आपको अगर यही फाइल के ऊपर दूसरे सॉफ्टवेयर में काम करना है, अब काफी सारे लोगों को क्या रहता है कि कोई और सॉफ्टवेयर के ऊपर यू आर हैंडी टू वर्क, ठीक है, किसी और सॉफ्टवेयर के ऊपर आपको काम करने के लिए एकदम इजी जाता है, ठीक है, बट यू कैन नॉट वर्क ऑन द सेम मॉडल। कुछ कुछ टूल्स इसके अंदर आपको अच्छे से आते हैं, कुछ कुछ टूल्स दूसरे सॉफ्टवेयर में अच्छे से आते हैं, ठीक है। ऑटोडेस्क ने भी सेम किया है, ठीक है। व्हाई दे हैव डिस्कवर्ड ऑल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स, डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एक ही सॉफ्टवेयर में वो लोग डाल नहीं सकते थे क्या सब? उन्होंने इसके लिए ही ये डिफरेंशिएट किया है कि some of the tools are user friendly or some of the tools are very easy to operate in some softwares and another tools are easy to operate in another softwares. For example, माया के अंदर आप लोग मॉडलिंग, टेक्सचरिंग और एनिमेशन एकदम अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम अगर आप लोग इंडस्ट्री का भी रिलेटेड कुछ भी देखोगे तो उसके अंदर you will get the Maya software as a major software for creating animations, ठीक है। एनिमेशन के लिए मैक्सिमम माया सॉफ्टवेयर ही यूज होता है। Next, for architectural designs, you will get 3ds Max software because the tools are very easy to operate in 3ds Max related to the architectures, ठीक है। इसमें मेजरमेंट के टूल्स एकदम इजी क्रिएट किए हैं, मींस दे हैव फोकस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टूल्स फॉर दैट सॉफ्टवेयर। अभी आपको सिर्फ मॉडलिंग करना है, तो अगर मैं सारे टूल्स एक ही सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा तो सिर्फ मॉडलिंग के लिए आप लोग वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करोगे। अब नाउ करंटली दिस सॉफ्टवेयर व्हेन यू इंस्टॉल विल गो अप टू 8 to 9 GB, ठीक है, या फिर 6 to 7 GB तक जाएगा सॉफ्टवेयर। अगर मैं सारे टूल्स एक ही सॉफ्टवेयर में डाल दूंगा, सारे टूल्स जो भी आपको करना है, अगर आपको ऐसे लगता है कि सारे काम एक ही सॉफ्टवेयर में होना चाहिए, कोई ऐसे सॉफ्टवेयर क्यों नहीं बनाते वो लोग, तो there is a reason behind that. If you add all of the tools in one software, one single software, तो उसका जो है मेमोरी वो चला जाएगा आपका कितना 50, 60, 70 GB तक चला जाएगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टूल्स विच दे हैव एडेड। तो अगर आपको सिर्फ मॉडलिंग का भी काम करना है, then you cannot use, then you need to download that 50 to 60 GB सॉफ्टवेयर, और उतने बड़े सॉफ्टवेयर के अंदर आप लोग सिर्फ मॉडलिंग का काम करोगे, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। So for that, to avoid that, they have created different types of software according to their need and the uses, ठीक है। So I'll just select this software और इसके हिसाब से ही आपको ऊपर वर्क करना है। अगर कोई आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट आपके पास आता है then you have to work in 3ds Max। अगर कोई मॉडलिंग का, टेक्सचरिंग का या फिर एनिमेशन का प्रोजेक्ट आता है then you have to work in 3ds Maya, ठीक है। So I have selected this। या फिर अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे आपके, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स भी आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो और इंपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। I will select this model, go to file, export, ठीक है। यहाँ से क्या करूंगा मैं, I will export this in the selected format। अब यहाँ पे क्या है, export, export selected, publish to DWF and game exporter, ठीक है। Export is the normal option for exporting the model। Next is export selected। एक्सपोर्ट मतलब क्या रहेगा, आपका पूरा जितने सीन के अंदर ऑब्जेक्ट्स है वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सपोर्ट होंगे। एक्सपोर्ट सिलेक्टेड मतलब जितना सिलेक्शन किया है आपने सिर्फ उतना ही एक्सपोर्ट होगा। पब्लिश टू DWF, इफ यू हैव क्रिएटेड एनी कर्व्स और लाइंस इट विल बी एक्सपोर्टेड टू DWF, ठीक है। DWF इज द फाइल फॉर्मेट यूज्ड फॉर AutoCAD, ठीक है। AutoCAD के लिए जो फाइल फॉर्मेट यूज होता है दैट इज DWF। नेक्स्ट इज गेम एक्सपोर्टर। अभी गेमिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट्स हम लोग यूज करते हैं, it will reduce the quality and it will reduce the mesh of that object and it will export it in the game creation format। अभी गेमिंग के लिए आप लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, दैट इज यूनिटी, अनरियल इंजन, ब्लेंडर, ठीक है। ये सारे जो गेमिंग इंजन्स है या फिर गेम के रिलेटेड जो भी सॉफ्टवेयर आपको रहेंगे वो सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए यू कैन यूज दिस, ठीक है। बट if you directly export in the selected format then you can import it in any software। I will export this from here, export selected, desktop पे export करता हूँ मैं बंगलो, ठीक है, नाम डालता हूँ यहाँ पे। now these are some of the exporting options, exporting file formats। FBX is for Filmbox, .3ds, Alembic ABC, Illustrator, ASE, ASS, DAE, DWF, DWG। अभी आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मेनी फाइल फॉर्मेट्स आर देयर फॉर एक्सपोर्टिंग एनी ऑब्जेक्ट इन 3ds Max। कितने फॉर्मेट्स में आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 फाइल फॉर्मेट्स। ठीक है, ये तो ऑल फॉर्मेट्स का एक अलग से एक्सपोर्ट है। ठीक है, 16 फाइल फॉर्मेट्स आर अवेलेबल डिफॉल्ट इन 3ds Max। अगर ऑल भी फाइल फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट करना चाहते हो देन यू हैव टू डाउनलोड द प्लगइन्स। प्लगइन्स आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, देन यू कैन इंस्टॉल इट इन द सॉफ्टवेयर, देन यू कैन एक्सपोर्ट इट। ठीक है, देन मैक्सिमम जो फॉर्मेट यूज होता है दैट इज FBX एंड OBJ, ऑब्जेक्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, मैक्सिमम जो फाइल जितने भी हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं दैट विल बी इन FBX एंड OBJ। FBX and OBJ supports maximum or all of the software related to Autodesk। Autodesk की भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है FBX का और OBJ का, और बाकी भी कुछ कुछ सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है जैसे कि ZBrush, ब्लेंडर, ठीक है, यूनिटी, अनरियल इंजन। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल फाइल फॉर्मेट्स है एक्सपोर्टिंग के जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम सॉफ्टवेयर सपोर्ट करते हैं। ठीक है, FBX OBJ। आप लोग कुछ कुछ मोबाइल के ऐप्स भी देखोगे तो उसके अंदर भी आपको इम्पोर्टेंट 3D के ऐप्स अगर आप लोग देखोगे, जस्ट यू हैव टू व्यू द 3D मॉडल, देन यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ फाइल एक्सपोर्ट ऑप्शंस। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FBX एंड OBJ? ठीक है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन FBX एंड OBJ। इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट जस्ट द मॉडल, ठीक है, सिर्फ आपको अगर मॉडल एक्सपोर्ट करना है देन यू हैव टू एक्सपोर्ट एन OBJ फाइल फॉर्मेट, जिसके अंदर आपका सिर्फ मॉडल और उसका मेश आएगा, उसके टेक्सचर्स, एनिमेशंस, कैमरास, लाइट्स, वो सब आप लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। सिर्फ आपका मॉडलिंग का जितना ही पार्ट रहेगा, ऑब्जेक्ट जितना रहेगा, ऑब्जेक्ट। OBJ इज द ऑब्जेक्ट एक्सपोर्टर। ठीक है, उसके नाम के अंदर ही उसका मीनिंग है। OBJ इज द ऑब्जेक्ट एक्सपोर्टर व्हिच यू नीड टू एक्सपोर्ट द ऑब्जेक्ट विदाउट एनी एक्स्ट्रा टूल्स और एलिमेंट्स। ठीक है, सिर्फ ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी चेंजेस वगैरह किए रहेंगे वही एक्सपोर्ट होगा इन द OBJ फॉर्मेट। एंड FBX के अंदर आप लोग सभी चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देयर आर टेक्सचर्स, एनिमेशंस, लाइट्स, कैमरास, रिगिंग के पार्ट रहेंगे, या फिर कोई भी एक आपका टूल्स रहेगा, या फिर सम ऑफ द एनिमेशंस, या फिर जो वॉक थ्रू वगैरह हम लोग क्रिएट करते हैं एनिमेशंस क्रिएट करके, दैट टाइप ऑफ एक्सपोर्टिंग विल बी डन इन FBX फाइल फॉर्मेट। ठीक है, इट इज अ हैवी फाइल फॉर्मेट, इसका मेमोरी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू OBJ। ठीक है, सो आई विल एक्सपोर्ट बोथ एंड शो यू दैट। ठीक है, OBJ, आई विल एक्सपोर्ट द OBJ फाइल फॉर्मेट bungalow.obj and save it. ठीक है, see, while exporting OBJ you will get these type of exporting options। ठीक है, geometry, flip YZ axis, मतलब ये जो एक्सिस रहेगा अगर सॉफ्टवेयर कुछ उल्टा ऐसे वगैरह वर्क करता रहेगा then you have to flip YZ axis। नेक्स्ट, शेप्स एंड लाइंस भी एक्सपोर्ट करना है, हिडन ऑब्जेक्ट्स भी एक्सपोर्ट करना है, देन यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। फेसेस, क्वाड्स, क्वाड्स आर नथिंग बट द पॉलीगॉन्स। ठीक है, पॉलीगोनल ऑब्जेक्ट्स जो रहेंगे दैट विल बी द क्वाड्स। ट्राइंगल्स में करना रहेगा, अगर ट्राइंगल्स है आपके पास, ठीक है, इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट दिस ऑब्जेक्ट इन ट्राइंगल्स देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस। लेकिन ट्राइंगल्स में अगर एक्सपोर्ट करोगे तो दूसरे सॉफ्टवेयर में उसके ऊपर काम करने के लिए आपको मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज ट्राइंगुलेटेड मॉडल्स के ऊपर हम लोग वर्क नहीं करते हैं एंड दोज मॉडल्स आर जस्ट फॉर डिस्प्लेइंग पर्पस। अगर आपने कोई एकदम अच्छा मॉडल किया है एंड इफ यू वांट टू शो इट टू समवन एल्स, ठीक है, किसी को अगर आपको दिखाना रहेगा, किसी ने आपके पास से मांगा है कि दिखाओ मुझे आपका वर्क कैसा है या फिर आपने कैसे मॉडल किया है, देन यू हैव टू एक्सपोर्ट दैट। आप लोग डायरेक्टली ये फाइल नहीं दे सकते, देन दे कैन मिसयूज दिस फाइल। ठीक है, वो लोग खुद के प्रोजेक्ट्स के अंदर वो फाइल यूज कर देंगे एंड दे विल से दैट आई हैव क्रिएटेड इट। ठीक है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू एक्सपोर्ट इट इन ट्रायंगुलेटेड फॉर्मेट। ट्रायंगुलेटेड फॉर्मेट के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है, देन दे विल नॉट बी एबल टू एडिट दैट फाइल, क्योंकि वो पूरा एक ट्रायंगुलेटेड मेश आ जाता है उसके ऊपर एंड इट इज वेरी हार्ड टू वर्क ऑन इट। अगर कुछ चेंजेस करने रहेंगे then they cannot make changes on the triangulated models। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सपोर्ट मटेरियल्स। अब इसके अंदर मटेरियल्स ज्यादा करके एक्सपोर्ट नहीं होते हैं, क्रिएट मटेरियल लाइब्रेरी एंड मैप एक्सपोर्ट। नेक्स्ट, टारगेट आउटपुट, विच आउटपुट यू वांट, PC, विंडोज, यूनिक्स, मैक, विच ऑपरेटिंग सिस्टम यू वांट टू गेट द आउटपुट। टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स, नॉर्मल, स्मूथिंग ग्रुप्स, ठीक है, जो भी आप लोग ने यहाँ पे मॉडिफायर्स वगैरह अप्लाई किए हैं दैट यू हैव टू एक्सपोर्ट एंड यू कैन क्लिक ऑन दिस। वर्टेक्स, नॉर्मल्स एंड टेक्सचर कोऑर्डिनेट्स you have to modify।
ऑप्टिमाइज, ठीक है. नेक्स्ट प्रीसेट, एंड विच प्रीसेट यू हैव टू एक्सपोर्ट इट, ठीक है. अब यहाँ पे नन है, मतलब ये वाला जो है आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर जितने भी सॉफ्टवेयर मेंशन किए गए, सी ये इतने सारे सॉफ्टवेयर्स को ये एक्सपोर्ट सपोर्ट करता है, ओबीजे एक्सपोर्ट, ठीक है. ऑल ऑफ दिस सॉफ्टवेयर्स आर सपोर्टेड फॉर ओबीजे एक्सपोर्ट. यहाँ से आप लोग एक्सपोर्ट करोगे तो आप लोग ये सारे सॉफ्टवेयर्स के अंदर ये वाली फाइल ओपन कर सकते हो, ठीक है. मैपी प्रो, ब्लेंडर, ब्राइस, कैरारा, सिनेमा 4D, डैश स्टूडियो, डीप क्रिएटर, डीप एक्सप्लोरेशन, डीप पेंट, हेक्सागन, लाइटवेव, माया, मोडो, मडबॉक्स, पोजर, रियल फ्लो, राइनो, सिलो, सॉफ्ट इमेज, यूवी मैपर, यूई, वर्ल्ड बिल्डर एंड ZBrush, ठीक है. अभी मैं यहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सिलेक्ट नहीं करता हूँ because I have to import it in all of these software. सभी सॉफ्टवेयर में अगर import करना रहेगा then don't select anything, just click on the export. housecolor.gpk, अभी इसके अंदर maps नहीं मिल रहे हैं इसको, ठीक है. So I will just skip this. देखो ये सारे ऑब्जेक्ट्स के यूज करके मैंने क्रिएट किया, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स एक्सपोर्ट हुए हैं अभी उसके अंदर. एवरीथिंग इट विल डिफाइन, ठीक है. बॉक्स 1 के अंदर 48 वर्टाइसेस है, 6 नॉर्मल्स है, 16 ट्रायंगुलेटेड वर्टेक्स है, ट्रायंगुलेटेड 0, क्वाड्स 46, मटेरियल्स 1, ठीक है. मैप्स, ये सारे कैलकुलेशंस है, ये सारे एक्सपोर्ट उसने किए हैं. डन. क्लियर. अभी कुछ कुछ ऐसे मॉडल्स रहेंगे जो एक्सपोर्ट नहीं हुए. बंगलो डॉट fbx, बंगलो डॉट, दिस इज द मटेरियल फाइल, ठीक है. मटेरियल फाइल. आई विल ओपन सम अदर सॉफ्टवेयर, माया ही ओपन करता हूँ मैं. ठीक है. अभी उसके अंदर जो मेंशन किए हुए सॉफ्टवेयर थे उसके अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर रहेगा आपके पास, आप इंस्टॉल करो और उसको देखो फिर कि उसके अंदर कैसे एक्सपोर्ट होता है या फिर कैसे इंपोर्ट होता है. ट्राई इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स. सम ऑफ द सॉफ्टवेयर सपोर्ट द ओबीजे फाइल्स, ठीक है, बट कुछ कुछ कंपोनेंट्स वो लोग सपोर्ट नहीं करते ओबीजे में के, ठीक है. जैसे कि मटेरियल सपोर्ट नहीं होते हैं, या फिर ट्रायंगुलेटेड मेश जो है वो सपोर्ट नहीं होता है. दे डू नॉट इंपोर्ट द ट्रायंगुलेटेड मेश, दे डायरेक्टली स्किप दैट मॉडल विद द ट्रायंगुलेटेड मेश, ठीक है. ऐसे वार्निंग वगैरह आता है इंपोर्ट करते वक्त. It's loading the components, ठीक है. Okay, done. Then from this software मैंने अलग सॉफ्टवेयर ओपन किया है. This is 3ds Maya 2018, ठीक है. Now in this, अभी ये भी आपको बता देता हूँ कि if you export FBX and OBJ files, then you can open those files in any of the version of those softwares, ठीक है. अभी मैंने 2018 से एक्सपोर्ट किया है that OBJ and FBX फाइल. अभी OBJ फाइल मैंने एक्सपोर्ट किया है 2018 से. That file I can open in the previous softwares also, ठीक है.
जैसे 2014, 15, 16 अगर आपका वर्जन रहेगा, then that version you can open that OBJ file. ठीक है, so it is easy to open these files using these export file formats. ठीक है, file. Now in this I will select import. ठीक है, वहां से एक्सपोर्ट किया है, मतलब इसके अंदर मुझे इंपोर्ट करना है. क्लिक ऑन द इंपोर्ट, गो टू डेस्कटॉप, बंगलो. ठीक है, बंगलो डॉट ओबीजे इंपोर्ट. ठीक है, सी प्रॉपरली पूरा सब ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट हो गया है. ठीक है, so I have exported it and imported this in another software. Now this is an OBJ export and OBJ import. ठीक है, इसके ऊपर ऑलरेडी टेक्सचर्स नहीं थे, इसलिए कुछ दिखेगा नहीं आपको. Now I will import. You see. Open. Don't save. ठीक है, सी आई हैव क्रिएटेड दिस मॉडल इन अनदर सॉफ्टवेयर. मतलब मैंने ये 3 days max के 2014 के वर्जन के अंदर क्रिएट किया है. सो इट इज आस्किंग टू कन्वर्ट दोस फाइल्स इनटू दिस कंपैटिबल फीचर्स. ठीक है, कन्वर्ट रेफरेंसेस फाइल्स, कन्वर्ट सी, अप्लाई ऑन सिलेक्टेड, या फिर मैं इसको क्लोज भी कर सकता हूँ. ठीक है, आई डोंट वांट टू कन्वर्ट इट. Okay, so this was the character model which I have created. इसके अंदर एनिमेशन है नहीं. Okay, animation है. This is the model with textures, lights and अभी एनिमेशन नहीं है इसके अंदर. ठीक है, if I create the animation then it will be of the animation also. ठीक है, so what I have to do, I have to export this textures, lights वगैरह सब एक्सपोर्ट करना पड़ेगा. अभी क्या होगा, लाइट्स मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इफ द लाइट्स आर सिमिलर टू ऑल ऑफ द सॉफ्टवेयर्स. मतलब इसके अंदर जैसे कि एक डायरेक्शनल लाइट है या फिर स्पॉट लाइट है, अगर वो लाइट्स दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर सिमिलर रहेंगे, वही प्रॉपर्टीज के या फिर वही सेम ऑप्शंस के लाइट्स रहेंगे, देन ओनली यू कैन import that light, or then only that software will import that light, or otherwise it will show you an error. ठीक है, I've almost created all of the details for this character. ठीक है, एक एक ऑब्जेक्ट पूरा क्रिएट किया है इसके अंदर. दिस इज अ ग्रुप, पूरे ग्रुप को सिलेक्ट करके टर्बो स्मूथ अप्लाई किया है. इट इज अ लो पॉली मॉडल. ठीक है,
ज्यादा हाई मेश नहीं है इसके अंदर, एकदम इजी मेश है। ठीक है ना, आई विल एक्सपोर्ट दिस मॉडल टू अनदर सॉफ्टवेयर। ऐसे के ऐसे पूरा आई विल सिलेक्ट इट विथ लाइट्स एंड ऑल। ठीक है, लाइट्स भी है इसके अंदर, आई हैव द टेक्सचर्स आल्सो। आई विल गो फॉर फाइल, एक्सपोर्ट, सिलेक्टेड, डेस्कटॉप, एक्सपोर्ट इट टू FBX। ठीक है, पहले मैंने आपको OBJ दिखाया, अभी आई विल शो यू द FBX फाइल फॉर्मेट। FBX कैरेक्टर सेव। ठीक है, now FBX file export will show you maximum options for exporting all of the elements in the scene। ठीक है, सीन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे एक्सपोर्ट करने के लिए इट विल शो यू द ऑप्शंस। नाउ दिस विल द प्रीसेट्स, व्हिच प्रीसेट यू वांट, Autodesk मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड Autodesk मड बॉक्स। ठीक है, एक सेपरेट उन्होंने वर्जन निकाला है फॉर द मड बॉक्स, बिकॉज मैक्सिमम जो है मॉडलिंग का काम आप लोग माया में या फिर मैक्स में करते हो, देन यू एक्सपोर्ट इट इन मड बॉक्स टू ऐड डिटेल्स। ठीक है, क्रिएट फाइन डिटेल्स। सो मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, नेक्स्ट इंक्लूड ज्योमेट्री, स्मूथिंग ग्रुप्स। ठीक है, स्मूथिंग ग्रुप्स, स्प्लिट वर्टेक्स। अभी ज्योमेट्री के अंदर क्या करना है आपको, टर्बो स्मूथ अप्लाई किया है वो भी एक्सपोर्ट करना है, कन्वर्ट डिफॉर्मिंग डैमेज टू बोन्स। ठीक है, ट्रायंगुलेटेड अगर मॉडल एक्सपोर्ट करना है देन यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर। ठीक है, OBJ के अंदर डायरेक्टली आपको सामने दिखता था, इसके अंदर यू हैव टू क्रिएट द ड्रॉप डाउन लिस्ट। ओके, ज्योमेट्री ओके है। एनिमेशंस, इफ देयर आर एनी एनिमेशंस देन यू कैन एक्सपोर्ट द एनिमेशंस। एक्स्ट्रा ऑप्शंस, यूज सीन नेम, रिमूव सिंगल की, बेक एनिमेशन। बेक एनिमेशन का भी काम आता है जब भी आप लोगों ने एनिमेशन कुछ क्रिएट किया है एंड आपको डायरेक्टली मॉडल के ऊपर अप्लाई कर देना है एक्सपोर्ट। ये भी आपको दिखाऊंगा मैं बाद में से कि बेक कैसे करना है आपका एनिमेशन। ठीक है, सो दैट विल डायरेक्टली बी अप्लाइड टू द मॉडल, और इसके अंदर फिर आप लोग दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर एनिमेशन में चेंजेस नहीं कर सकते क्योंकि वो मॉडल के ऊपर अप्लाई किया गया है एंड इट विल नॉट शो यू इन द टाइमलाइन। ठीक है, कभी कभी दिख जाएगा इफ द एक्सपोर्टिंग फाइल फॉर्मेट्स आर सेम एंड एक्सपोर्टिंग फाइल ऑप्शंस आर सेम, देन यू विल सी that frame options on the timeline, but maximum times you will not see the baked animation on the timeline. ठीक है, it is directly baked on the model itself. Deformations, which deformations you want, deformation, skins and morphs. I don't have any deformations in this character. Curve filters on करूँगा तो ये सारे curve filters वगैरह आएंगे, but I haven't used any curve filters. Cage files भी अलग एक options है। कैरेक्टर्स, which characters you want, HIK, कैमराज। ठीक है, कैमराज अगर आपने अप्लाई किए हैं देन इट विल एक्सपोर्ट द कैमराज। लाइट्स ऑन ऑफ। ऑडियो अगर रहेगा इसके अंदर देन यू कैन आल्सो एक्सपोर्ट द ऑडियो, अभी नहीं है इसके अंदर ऑडियो सो इट विल नॉट। एम्बेडेड मीडिया अगर कुछ रहेगा और वीडियोस या फिर कुछ अलग इसके अंदर ऑप्शंस रहेंगे देन यू कैन ऐड एम्बेड मीडिया। एडवांस ऑप्शंस आर द यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स इसके अंदर ऑटोमेटिक यूनिट्स है, इंचेस। देखो ऑटोमेटिक यूनिट्स फ्रॉम दिस सॉफ्टवेयर इज इंचेस, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इंचेस के ऊपर वर्क होता है। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हो फीट्स के अंदर, अगर आर्किटेक्चर मॉडल कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो देन यू कैन एक्सपोर्ट इट। ठीक है, ऑटोमेटिक ऑफ करके यहाँ से फिर इंचेस सिलेक्ट करो, इंचेस, फीट्स, यार्ड्स। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो सिलेक्ट करो, बट नाउ इट इज ऑटोमेटिक। एक्सिस कन्वर्जन, कौन सा एक्सिस के ऊपर आपको अपसाइड रखना है, अगर कुछ सॉफ्टवेयर के अंदर y एक्सिस नीचे रहता है and minus y is above the surface. ठीक है, so you have to set the axis conversion. UI, which user interface, show warning manager and generate logo data. Next is FBX file format. ठीक है, सी यहाँ से आप लोग FBX फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कितने कम से कम वर्जन के अंदर आपको एक्सपोर्ट करना है। बाइनरी है क्या, ASCII, these both formats can be exported in FBX. ठीक है, नेक्स्ट यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ reduced file for 2006 के वर्जन से स्टार्ट हो गया यहाँ पे। ठीक है, फ्रॉम 2006 सॉफ्टवेयर्स के वर्जन जो भी रहेंगे 2006 के, वहां से लेके
2018 तक आप लोग एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा 2006 से लेके जो भी इतने वर्जन रहेंगे वो सारे वर्जन के अंदर सपोर्ट होगा, ठीक है। नॉट डिफॉल्टेड 2014 टू 15 वही रखता हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट दिस इज हेल्प इंफॉर्मेशन, ओके। इट इज एक्सपोर्टिंग। अभी क्या क्या एक्सपोर्ट नहीं हुआ है इसके अंदर, ठीक है। मॉर्निंग एंड एरर्स, ज्योमेट्री कन्वर्जन, सम ऑफ द ज्योमेट्री वाज कन्वर्टेड इनटू मेश और द ट्रायंगुलेटेड नॉन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स सपोर्ट, ठीक है। कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स का मेश ट्रायंगुलेटेड सपोर्ट हुआ है। अनएक्सपेक्टेड लाइट टाइप, स्काईलाइट एंड एमआई एरिया लाइट, ठीक है। मटेरियल एक्सपोर्ट मींस दिस इज अ वार्निंग, उन्होंने वार्निंग दिया है कि ये सारे जो एक्सपोर्ट है, अब यहाँ पे देखो अनएक्सपेक्टेड लाइट टाइप, अभी ये जो है लाइट्स दूसरे सॉफ्टवेयर में ओपन होंगे या नहीं, दे डू नॉट गारंटी दैट, ठीक है। बट दे हैव एक्सपोर्टेड इट। मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं हुआ है सिर्फ, ठीक है, डिफॉल्ट। अब इसके अंदर कौन सा है, डिफॉल्ट मटेरियल एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, बाकी जो भी कलर्स वगैरह रहेंगे वो एक्सपोर्ट हो जाएंगे। ज्योमेट्री कन्वर्जंस बाकी सब एक्सपोर्ट हो गया है, ठीक है। I will click on the OK. ठीक है, done. I will open this in Maya. Import. Desktop. Character.fpx. Import. Close. इसको क्या करना है आपको, सिलेक्ट करके +3 फॉर स्मूथ, ठीक है। अभी स्मूथ हो गया ये। सी लाइट्स के अंदर भी कुछ लाइट्स एक्सपोर्ट हुए हैं। अभी आर्नोल्ड में नहीं दिखेगा, because that is not an Arnold light. Shadow light. ठीक है, so in this way you can export and import different types of files. This file is much bigger as compared to the main scene. Okay. सर तो टेक्सचर्स तो आए नहीं इसके ऊपर।
ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मॉडल। और एक देखता हूँ मैं जिसके अंदर टेक्सचर्स रहेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत पुराने वर्जन्स में क्रिएट किया है मैंने। Export selected desktop just FBX. ओके, सो दे आर नॉट एबल टू फाइंड द टेक्सचर्स क्योंकि पुराने उसके अंदर बहुत सारा ये भी है। What I will do, I will create a new scene। ठीक है, ये सारे सीन्स के ऊपर नहीं जाएंगे हम लोग। Because while exporting also the software needs to find the texture locations। ठीक है, जो locations के अंदर सेव किया रहेगा वो लोकेशन अगर उसको मिलता है then only it will export the texture from the XBX file। ठीक है, I will just download one texture। ठीक है, press M, go to modes, compact material editor। यहाँ से you can apply some default textures। अब ये इसके है standard textural diffuse map। ये भी आपको दिखाता हूँ मैं how you can apply the textures। ठीक है, just file, export, selected to desktop और FBX। और I have the second option also, file, send to Maya।
This is connected to Maya. See, it is Max update. Okay, so material techniques I will show you in another lecture. Okay. Just remember how what all files you can import and export. ठीक है, import and export करने के लिए आपके पास कौन कौन से formats है और कौन से files आप लोग export and import कैसे कर सकते हो. ठीक है, you can use your created files in different file formats and you can work on those files. ठीक है, clear with this? Anyone have any doubts? Sir. Sir. ठीक है, चलो प्रैक्टिस करो और let me know if you have any doubts. Sure, see you in the next session. You can leave. Sir, hello. हाँ बोलो ना. सर टेक्सचर्स अपन रिपोर्ट में तो आ रहे हैं लेकिन रेंडर में नहीं आ रहे. हाँ हाँ मतलब 3ds मैक्स के अंदर ही बात कर रहा हूँ. हाँ हाँ, रेंडर के अंदर सर, वो मतलब कैसे वो करेंगे? रेंडर इंजन है उसका, आर्नोल्ड के टेक्सचर्स नहीं है वो. ठीक है, तो मटेरियल डाला ऑफ मेंटल रे, उसके अंदर आपको आर्नोल्ड के मटेरियल डालने पड़ेंगे. तो सर कोई भी कुछ मतलब अगर मैं कोई भी इंजन लूँ, रेंडर इंजन में कोई भी, हाँ हाँ, तब भी नहीं आ रहा. मतलब सेम इंजन लूँ तो भी नहीं आ रहा. फिर आप लाइट अप्लाई करते हो क्या, आर्नोल्ड का लाइट्स? हाँ सर, लाइट का लाइन. मतलब मैंने जैसे किया था वैसे अप्लाई करते हो क्या आर्नोल्ड के? एक हाँ स्काईडोम भी सर. ऐड कर दोगे ना आप, तो भी हो जाएगा. हाँ सर, मैं वीडियो यूज करता सर. वीरे यूज करते हो? हाँ सर. नहीं, वीरे मत यूज करो. वीरे के लिए फिर आपको अलग से उसके मटेरियल्स, अलग से उसके लाइट्स वगैरह ऐड करके फिर रेंडर करना पड़ेगा. हर एक सर रेंडर वीडियो में इंजन की वीडियो बना प्रॉपर्टीज सकते और हैं. एलिमेंट्स अलग अलग रहते हैं. सर और वीडियो में वीरे का वीडियो जो बना रेंडर सकते विंडो हैं. है, वीरे का जो रेंडर विंडो है वो अलग से ओपन होता है. ठीक है, आप लोग हाँ नॉर्मल सर. रेंडर के अंदर नहीं कर सकते. हाँ सर. हाँ हाँ, सर एवीआई फाइल बना सकते हैं क्या अपन? एरिया लाइट्स नहीं ना. अ, जैसे आप लोग वीरे में यूज करोगे ना, तो वीरे के अलग से लाइट्स आते हैं, सर आर्नोल्ड के अलग लाइट्स से में लाइट्स आते हैं. एवीआई फाइल क्या क्या? अपन बना सकते हैं वीडियो में. कौन सी फाइल्स? एवीआई फाइल, वीडियो फाइल. वीडियो फाइल बना सकते हो ना. सर नहीं बनती सर, सपोर्ट ही नहीं करता हूँ. नहीं, होगा ना, होगा ना. आपको उसके प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ते हैं, और वो डायरेक्टली वैसे एक MP4 फाइल नहीं करता है, वो सीक्वेंस रेंडर करता है, इमेज सीक्वेंस. यू हैव टू सर अप्लाई वो भी बैच नहीं कर रेंडर रहा, बैच सपोर्ट. रेंडर भी नहीं कर रहा हूँ. हाँ, बैच रेंडर वो भी नहीं कर रहा सर वो. होता है, होता है. कुछ तो सेटिंग्स में आपने आपका प्रॉब्लम रहेगा, तो सेटिंग्स प्रॉपर्ली अप्लाई वो करोगे बोलता तो. है सपोर्टेड नहीं है बोले सर. अच्छा, क्रैक किया है क्या आपने? हाँ क्रैश है सर. क्रैक किया है, रहेगा कुछ तो सेटिंग में प्रॉब्लम रहेगा आपके, नहीं तो फिर वैसे नहीं बोलेगा वो, क्योंकि मेरे यहाँ पे तो सब दिखता है ठीक ना है. ऑटोमेटिक. थैंक यू. ठीक है, चलो.